السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ شہر کے مختلف مقامات پر چیف منسٹر کا دورہ، بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ۔ چیف منسٹر کے قافلے کی روانگی کے دوران ٹریفک تحدیدات سے شہر کی کئی سڑکوں پر ٹریفک جام، راہگیروں کو مشکلات۔ عازمین حج کے پہلے قافلے کی 6 اکتوبر کو روانگی، بہتر انتظامات کے لیے وزیر اقلیتی بہبود، پولیس کمشنر اور ایئر لائن عہدیداروں کا تیقن۔ اور اقلیتی کالجز میں سنگل ونڈو سسٹم کے تحت بی ایڈ کاؤنسلنگ کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ 1 اکتوبر سے شہر میں شروع ہونے والی بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چہارشنبے کو شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ کرن کمار ریڈی نے مادھا پور اسٹیٹ آرٹ گیلری، شلپا رامم، ماں صاحب ٹینک، JNTU کالج، رائے درگم اور دیگر مقامات کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ہمراہ میئر محمد ماجد حسین، ریاستی وزراء سویتا ریڈی، گیتا ریڈی، ڈی ناگیندر، مکیش گوڑ، وی وسنت کمار، سی راما راجو اور سریدھر بابو کے علاوہ رکن اسمبلی نامپلی محمد وراثت رسول خان اور کمشنر GHMC کرشنا بابو اور دوسرے عہدیدار موجود تھے۔ کمشنر بلدیہ کرشنا بابو نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کانفرنس کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور باقی کام جنگی خطوط پر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے گرینری اور شجرکاری سے متعلق کام میں تیزی لانے اور کیبل وائرز جو سڑکوں پر لٹک رہے ہیں انہیں نکال دینے کی ہدایت دی۔ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو بتایا کہ 30 سپٹمبر تک تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ ہمارا چیف منسٹر صاحب ابھی کاپ میں کام جو چل رہا ہے اس کا انسپیکشن کے لیے دورہ کیے تھے۔ تو اس میں مینلی ہمارا مین روڈز، ڈفرینٹ روڈز جو گیسٹ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے گا، جو ہوٹلز کو جائے گا، ہوٹل سے وینیو سے ٹورزم پلیسز، وہ جانے کا روٹس میں جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بولا گیا تھا وہ پروگرس دیکھنے کے لیے ایک دورہ کیا تھا۔ اس میں کچھ سیشنز دیے ہیں اور کچھ ورکس ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بولا تھا۔ جو بھی HSCC میں آلٹرنیٹ روڈس بنا رہے ہیں وہ ایک ہی انٹرنس اینڈ ایگزٹ کا بھی ہے، اس کو تھوڑا ایمرجنسی میں یوز کرنے کے لیے 2 اور ایگزٹ بنا رہے ہیں اور ایگزسٹنگ روڈ کا وائڈننگ چل رہا ہے اور پورا اوور آل ورکس تھوڑا پیس بڑھانا ہے اور ابھی 20 دن باقی ہے۔ 20 دن میں جتنا تک میکسیمم ہم جلدی کر سکیں وہ پورا کام کرنے کے لیے ہم GHMC کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر شہر کے مصروف ترین علاقوں کوکٹ پلی، گچی باؤلی، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی اور اس کے آس پاس 2 گھنٹے تک ٹریفک مکمل درہم برہم ہو گئی تھی۔ چیف منسٹر، ریاستی وزراء، عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کی گاڑیوں کا قافلہ قریب 60 کاروں پر مشتمل تھا۔ جس علاقے کا چیف منسٹر دورہ کر رہے تھے وہاں پر ٹریفک تحدیدات تھیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو ناقابل برداشت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالخصوص کالج اور اسکول کے طلباء اور ان افراد کو مشکلات ہوئیں جو صبح کے اوقات میں دفاتر کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ نہرو زولوجیکل پارک میں بھی بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس COP2 کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر جنگلات J راما راؤ نے نہرو زولوجیکل پارک میں چلائی جانے والی منی بسوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے علاوہ زو پارک کو خوبصورت بنانے اور مختلف سہولتیں مہیا کرنے کی غرض سے کئی دوسرے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں جو سیاحوں کے لیے آرام اور دلچسپی کا باعث ہوں گے۔
17 सितंबर से शुरू होने वाले रियासती असम्बली के मानसून सेशन के पेश नज़र स्पीकर असम्बली ने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें 5 रोज़ा इजलास के दौरान हिफाजती इंतजामात के सिलसिले में तफसीली जायजा लिया गया। एक आला पुलिस ओहदेदार ने बताया कि 800 ता 900 पुलिस ओहदेदारों की खिदमत हासिल रहेगी और किसी भी नागहानी वाक़े से निमटने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। जारिया साल हज के लिए रियासती आज़मीन की पहली फ़्लाइट 6 अक्टूबर को रवाना होगी और जुमला 8500 आज़मीन हज हैदराबाद से बज़रिए सऊदी एयरलाइंस जद्दा के लिए परवाज़ करेंगे। उनके जुमला 7356 आज़मीन का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से है और माबाकी का कर्नाटक और महाराष्ट्र से। हज इंतज़ामात के सिलसिले में एक इजलास हज हाउस में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला, मरकज़ी हज कमेटी के CEO शकील हुसैन, रियासती हज कमेटी के सदरनशीन खलील अहमद, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, रुकन असम्बली मस्तान वली, GMR और सऊदी एयरलाइंस के ओहदेदारों के अलावा अराकीन हज कमेटी ने शिरकत की। जुमला 26 फ़्लाइट्स के ज़रिए रवाना होने वाले आज़मीन हज की वापसी का आगाज़ 17 नवंबर को होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इजलास के दौरान GMR और सऊदी एयरलाइंस के ओहदेदारों के अलावा पुलिस कमिश्नर ने बेहतर से बेहतर इंतजामात का तयक़ुन दिया है। अनुराग शर्मा ने यकीन दिलाया कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस और ट्रैफिक तहदीदात के बावजूद आज़मीन को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हज कैंप में भी नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए बेहतर खिदमत फराहम की जाएंगी। एक आज़िम के साथ सिर्फ एक आदमी को हज कैंप में दाखिले की इजाज़त रहेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला ने यकीन दिलाया कि इस साल गुज़िश्ता पाए गए नक़ाइस को दूर कर लिया जाएगा और बेहतरीन इंतज़ामात देखने को मिलेंगे। 26 फ्लाइट पूरे जिद्दा से बार हैदराबाद जिद्दा पूरे हमारे आंध्र प्रदेश के कोटा के 7,350 प्रोजेक्ट 7,356 हाजिज टोटल एम्ब्रेगेशन पॉइंट है ना, उसमें 8,500 को तो कर्नाटक के उसमें अटैचमेंट गुलबर्गा 8,500 टोटल 500। आज ये मीटिंग चली ना पूरे GMR से और हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब आए थे। पुलिस का अरेंजमेंट कैसा रहना है, कितने होमगार्ड को डालना, आउटपोस्ट डालना, अंदर आने के वास्ते एक हाजी के साथ एक ही आदमी को लगाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करो पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि एक हाजी के साथ 10 आदमी आ जाती हाँ 100 अंदर से भी नहीं तो तकलीफ हो जाती है। अल्लाह के फजल से दूसरे डिपार्टमेंट GMR वो सऊदी एयरलाइंस सब आए, जो एज यूजुअल जो लास्ट ईयर चला ना उसके हिसाब से पूरा बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट करेंगे। हमारा मॉनिटरिंग होता, मैं भी आता तुम ले लिया। लास्ट टाइम थोड़ा ये हो रहा है, CP साहब को हमारे तरुण जोशी को बोला हूं मैं, अगर कोई भी ऐसी फालतू बात कर झगड़ा कर लिया उसे अंदर डाल देना, हज का सीजन लास्ट फ्लाइट के बाद बाहर करना उसे। अक़लियती कॉलेजेस में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत B.Ed काउंसलिंग का आगाज़ हुआ, जो 14 सितंबर तक जारी रहेगा। जिम्मेदारों ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिए 16 ता 20 सितंबर दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक़लियती उम्मीदवारों के दाखिले मुकम्मल होने के बाद ही दीगर उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। B.Ed के लिए 30 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवार और सालाना 1 लाख से कम आमदनी वाले उम्मीदवार फीस रीइंबर्समेंट के अहल होंगे। दाखिलों में शफ़ाफ़ियत बढ़ती जा रही है। सितंबर की 14 तारीख को शाम 6 बजे से इंजीनियरिंग और फार्मेसी में दाखिलों के लिए नशिस्तों के अलॉटमेंट का अमल शुरू होगा। MSET काउंसलिंग के अहम ओहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि तलबा को SMS के जरिए तफसीलात रवाना की जाएंगी। तलबा को SMS मिलने के बाद उन्हें 20 सितंबर तक मुताल्लिक़ा कॉलेजेस को रिपोर्ट करना होगा। काउंसलिंग के एक ओहदेदार ने यह भी बताया कि जारी माह की 28 और 29 तारीख से दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि लगड़ा पार्टी राजगोपाल जैसे सीमा आंध्रा के कायदीन ज़ाती मफाद के लिए अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रहे हैं।
सुंदरैया विज्ञान केंद्र में जेएसी के इजलास से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना के अवाम जारिया माह की 30 तारीख को ऐलान किए गए मार्च में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। कोदंडाराम ने कहा कि हर घर से एक शख्स आएगा और उस शख्स के हाथ में तेलंगाना का परचम होगा। तेलंगाना के कांग्रेसी वज़रा ने हुसूल तेलंगाना के लिए एक बार फिर मरकजी हुकूमत से रुजू होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में चहारशंबे को जाना रेड्डी, सारैया और दीगर कायदीन ने नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की और हुसूल तेलंगाना के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम के 6वें मरहले में 14 ta 16 सितंबर जिले महबूब नगर का दौरा करेंगे। इसी दौरान वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माजूरीन, आत्माकुर गांव के मछेरों, गदवाल के बुनकरों, एससी इस्तेफादा कुनिंदगान, आरजी के और आरवाई के इस्तेफादा कुनिंदगान और आरबी एलआईएस अयाकट के किसानों से बातचीत करेंगे। धारवाड़ मंडल में जवाहर निटम्पैड लिफ्ट इरिगेशन और कुत्ता कोटा में राजीव भीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 2 का इफ्तिताह भी उनके दौरे में शामिल रहेगा। वो जड़चल्ला और धारूर में जलसयाम से भी खिताब करेंगे। वो महबूब नगर के ZP मीटिंग हॉल में जिले की तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेंगे और इतवार 16 सितंबर को शालीमार फंक्शन हॉल में मुसलमानों के साथ नाश्ता करेंगे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर मशरिकी गोदावरी, श्रीकाकुलम, खम्मम, मगरबी गोदावरी और कर्नूल अजला के भी दौरे कर चुके हैं। साबिक रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि छोटी रियासतों के क़याम से नक्सलिज्म के फ़रोग़ के अंदेशे गलत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से छोटी रियासतों के क़याम की हामी रही है। रुकन असेंबली मुत्तयम रेड्डी ने कहा है कि ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के लिए चीन से तुख़म खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मुत्तयम रेड्डी ने कहा कि हमारे पास काबिल साइंसदान मौजूद हैं और 50 से 60 कुंटल फी हेक्टर तुख़म पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में किसानों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। मुत्तयम रेड्डी ने कहा कि ग़िज़ाई अजनास की कमी के बहाने बीटी ग़िज़ा से अवाम की सेहत मुतासर हो सकती है। उनका कहना था कि सिर्फ स्वामीनाथन कमीशन का राग अलापने के बजाय उस पर अमल आवरी की जरूरत है। तेलुगुदेशम पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में जब भी कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार होता है, मजालिस से मकामी के इंतखाबात दानिस्ता तौर पर नहीं करवाए जाते। 1970 से ऐसा ही किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली वेंकट वीरैया ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि देही इलाकों की हालत इंतहाई अबतर है। मजालिस मकामी के कोई जिम्मेदार नहीं है जो अवाम को जवाबदेह हों। कांग्रेस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन ही नहीं करवा रही है। खबरनामे में अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद।